أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان روزہ دار ماؤں بہنوں بیٹیوں اپنے ادارے کی جملہ سٹاف اور طالبات کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان والیو، دورہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہم جو مکی زندگی کے مرحلے کے آخری سلسلے میں ہیں، تو آئیں دیکھتے ہیں کہ جو سابقہ سبق میں ہم نے پڑھا اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ قریش کی جو پارلیمنٹ ہے دارالندوہ اس میں کیا ہوا. ایمان والیوں، جب مشرکین نے دیکھا کہ صحابہ کرام تیار ہو کر نکل گئے اور بال بچوں اور مال و دولت کو لاد پھاد کر اوس و خزرج کے علاقے میں جا پہنچے تو ان میں بڑا کوہرام مچ گیا. غم و علم کے لاوے پھوٹ پڑے اور انہیں ایسا رنج اور قلق ہوا کہ اس سے پہلے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا. اب ان کے سامنے ایک ایسا عظیم اور حقیقی خطرہ مجسم ہو چکا تھا جو ان کی بت پرستانہ اور اقتصادی اجتماعیت کے لیے چیلنج تھا. ایمان والیوں، مشرکین نے اس مقصد کے لیے بیت عقبہ کبریٰ کی تقریباً 2.5 مہینے بعد مکے کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں تاریخ کا سب سے بڑا سب سے خطرناک اجتماع منعقد کیا اور اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی. موضوع بحث ایک ایسے قطعی پلان کی طرف تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علمدار کا قصہ بعجلت تمام پا کر دیا جائے اور اس دعوت کی روشنی کلی طور پر مٹا دی جائے. ایمان والیوں، مقررہ وقت پر یہ نمائندگان دارالندوہ پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت میں عبا اوڑے رستہ رو کے دروازے پر کھڑا ہوا. لوگوں نے کہا یہ کون شیخ ہے؟ ابلیس نے کہا یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے. آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہوں. باتیں سننا چاہتا ہوں اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کے خیر خواہانہ مشورے بھی آپ کو دوں گا. لوگوں نے کہا بہتر ہے آپ بھی آ جائیے. چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر ہو گیا. ایمان والیوں، اجتماع مکمل ہو گیا تو تجاویز اور حل پیش کیے جانے شروع ہوئے اور دیر تک بحث جاری رہی. پہلے ابو الاسد نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور انہیں اپنے وطن سے جلا وطن کر دیں وغیرہ، تاکہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہ رہے، ان سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا کوئی تعلق نہ رہے. اس طرح پارلیمنٹ کے افراد نے مختلف اپنی رائے دی کہ ایسے کر لیں، لیکن بالآخر اس کے بعد پارلیمان مکہ نے یہ مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کیا کہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کریں گے اور اس بات پر سب نے اتفاق بھی کر لیا اور ممبران اس عزم منعم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے کہ اس قرارداد پر عمل فی الفور کرنا ہے، جلدی کرنا ہے. ایمان والوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے
आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम को यहाँ से रवानगी की इजाजत दे दी है, और ये कहते हुए हिजरत के वक्त का तयन भी फरमा दिया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ये रात अपने उस बिस्तर पर ना गुजारे जिस पर अब तक गुजारा करते थे। ईमान वालियों, इस इतला के बाद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ठीक दोपहर के वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर तशरीफ लेकर गए ताकि उनके साथ हिजरत के सारे प्रोग्राम और मरहले तय फरमा ले। ईमान वालियों, उधर कुरैश के अकाबर मुजरमीन ने अपना सारा दिन मक्के की पार्लियामेंट दारुल नदवा की पहले पहर की तय करदा करारदाद के नफाज की तैयारी में गुजारा, और इस मकसद के लिए इनके अकाबर मुजरमीन में से 11 सरदार मुंतखब किए गए। इब्न इसहाक का बयान है कि जब रात जरा तारीख हो गई तो लोग घात लगाकर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर बैठ गए ताकि जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सो जाएं तो ये लोग आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े। उन लोगों को पूरा वसूख था और पुख्ता यकीन था कि उनकी ये नापाक साजिश कामयाब होकर रहेगी। बहरहाल ईमान वालियों, इस साजिश के नफाज के लिए आधी रात के बाद का वक्त मुकर्रर था, इसलिए ये लोग जाकर रात गुजार रहे थे और वक्त मुकर्ररा के मुंतजिर थे, लेकिन अल्लाह अपने काम पर गालिब है। उसी के हाथ में आसमानों और जमीन की बादशाहत है। वो जो चाहता है करता है, जिसे बचाना चाहे उसे बचाता है, उसका कोई बाल बिका नहीं कर सकता, और जिसे पकड़ना चाहे कोई उसे बचा नहीं सकता। चुनांचे ईमान वालियों, अल्लाह ताला ने इस मौका पर वो काम किया जिसे ज़ैल की आयत करीमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए बयान फरमाया है। तर्जुमा, वो मौका याद करो जब कुफार तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे ताकि तुम्हें कैद कर दें या कत्ल कर दें या निकाल बाहर करें, और वो लोग दाव चल रहे थे और अल्लाह भी तदबीर फरमा रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। बहरहाल ईमान वालियों, कुरैश अपने प्लान के नफाज की इंतहाई तैयारी के बावजूद फाश नाकामी से दो चार हुए। चुनांचे इस नाजुक तरीन लम्हे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमुल्लाह वजहू से फरमाया कि तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और ये मेरी सब्ज हजरमी चादर ओढ़ कर सो रहो, तुम्हें उनके हाथों कोई गजंद नहीं पहुंचेगा, कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों यही चादर ओढ़ कर सोया करते थे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले आए, मुशरिकीन की सफे चीरी और एक मुट्ठी संग्रेजों वाली मुट्ठी लेकर उनके सरों पर डाली, लेकिन अल्लाह ने इनकी निगाहें पकड़ ली और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ना सके। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत तलावत फरमा रहे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। हमने उनके आगे रुकावट खड़ी कर दी और उनके पीछे रुकावट खड़ी कर दी, बस हमने उन्हें ढांक लिया है और वो देख नहीं रहे हैं। ईमान वालों, उसी मौके पर कोई भी मुशरिक बाकी ना रहा जिसके सर पर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मट्टी ना डाली हो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए और फिर उनके मकान की एक खिड़की से निकलकर
दोनों हजरात रात में यमन का रुख किया और चंद मील पर वाक़े सौर नामी एक पहाड़ के गार में जा पहुंचे। ईमान वालियों, उधर मुहासिरीन वक्त सफर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इससे जरा पहले ही अपनी नाकामी और नामुरादी का कुरैश वालों को इल्म हो गया। हुआ कुछ यूं कि उनके पास एक गैर मुतल्लिक शख्स आया और उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर देकर पूछा कि आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, यानी कि कुरैश वालों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। तो उसने कहा, आप लोग नाकाम और नामुराद हुए हैं, खुदा की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो आप लोगों के पास से गुजरे हैं और आपके सरों पर मट्टी डालते हुए अपने काम को कर गए हैं। उन्होंने कहा, बाखुदा हमने तो उन्हें नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने अपने सरों को झाड़ते हुए वो जब उठ खड़े हुए तो उन्हें पता चला कि उनके सर पर क्या मौजूद थी, मट्टी मौजूद थी। ईमान वालियों, लेकिन फिर दरवाजे की दराज से जाकर देखा तो हजरत अली करमुल्लाह वजहू नजर आए। कहने लगे, खुदा की कसम ये तो मोहम्मद सोए पड़े हैं, इनके ऊपर की चादर तो मौजूद है। चुनाचा ये लोग सुबह तक डटे रहे। उधर सुबह हुई और हजरत अली बिस्तर से उठे तो मुशरिकीन के हाथों के तोते उड़ गए, क्योंकि उन्होंने क्या समझा था, वहां पर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद है। उन्होंने हजरत अली से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ है। हजरत अली ने जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं है। ईमान वालियों, चूंकि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मालूम था कि कुरैश पूरी जान से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तलाश में लग जाएंगे और जिस रास्ते पर उनकी नजर उठेगी वो मदीने का कारवानी रास्ता होगा जो शमाल के रुख पर जाता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो रास्ता इख्तियार किया जो उसके बिल्कुल उल्ट था, यानी कि यमन जाने वाला रास्ता जो मक्का के जनूब में वाक़ है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रास्ते को कोई 5 मील का फैसले में तय किया और उस पहाड़ के दामन में पहुंचे जो सौर के नाम से मारूफ है। ईमान वालियों, ये नहायत बुलंद, पुरपेच और मुश्किल चढ़ाई वाला पहाड़ है। यहाँ पत्थर भी बकसरत हैं जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों पांव जख्मी हो गए और कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निशाने कदम छुपाने के लिए पंजों के बल चल रहे थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पांव जख्मी हो गए थे। बहरहाल ईमान वालियों, वजह कोई भी हो, ये कोई अमल आसान, ये रास्ता, ये सफर आसान हरगिज नहीं था। उधर ईमान वालियों, फिर हजरत अबू बकर सदीक ने क्या किया कि आपने पहाड़ के दामन में पहुंचकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उठा लिया और तोड़ते हुए पहाड़ की चोटी पर एक गार के पास जा पहुंचे जो तारीख में गारे सौर के नाम से मशहूर है। आगे चलते हैं, देखते हैं, और यहाँ पर यानी कि गारे सौर में ईमान वालियों, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सदीक 3 रातें, यानी जुम्मा सनेचर कहते हैं हफ्ते वाले दिन को, जुम्मा सनेचर और इतवार की 3 रातें छुप कर यहाँ पर उन्होंने गार में गुजारी। ईमान वालियों, इसके बाद कुरैश ने एक हंगामी अजलास करके ये तय किया कि दोनों को गिरफ्तार करने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल काम में लाए जाएं। चुनाचे अरब से निकलने वाले तमाम रस्तों पर, खा वो किसी भी सिमत में जा रहे हो, नहायत कड़ा मुसल्ला पहरा बैठा दिया गया। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत अबू बकर सदीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ गार में था। सर उठाया तो क्या देखता हूँ कि अगर लोगों की पांव नजर आ रहे हैं, गार से बाहर लोगों के
पाँव नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर इनमें से कोई शख्स महज अपनी निगाह नीचे कर दे तो हमें देख लेंगे, हम दिख जाएंगे। तो उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर खामोश रहो, हम दो हैं जिनका तीसरा अल्लाह है। हमारा तीसरा कौन है? अल्लाह है। ईमान वालियों, हकीकत में ये एक मौजज़ा था जिसे अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुशर्रफ फरमाया। चुनाचे तलाश करने वाले उस वक्त वापस चले गए जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरमियान और उनके दरमियान शायद कदम से भी ज्यादा फासला बाकी ना रह गया था, बिल्कुल करीब थे, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को महफूज फरमा लिया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुबा में तशरीफ लेकर जाते हैं। अब वहां पर आपके इस्तकबाल और दीदार के लिए सारा मदीना उमड़ पड़ा था। एक तारीखी दिन था जिसकी नजीर सरे जमीने मदीना में कभी ना देखी थी। आज यहूद ने भी हबकूक नबी की इस बशारत का मतलब देख लिया था कि अल्लाह जुनूब से और वो कुदूस है, कोहे फरा से आया। ईमान वालियों, उधर हजरत अली इब्ने तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मक्का में 3 रोज ठहर कर जो लोगों की अमानतें थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास, उन्हें अदा करके पैदल ही मदीने का रुख किया और कुबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आ मिले और कलसूम बिन हदम के यहाँ कयाम फरमाया। ईमान वालियों, उसके बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल होते हैं। जुमा के बाद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए और उसी दिन से उस शहर का नाम यसरब की बजाय मदीनातुर रसूल या शहर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पड़ गया, जिसे मुख्तसर का क्या कहा जाता है? मदीना कहा जाता है। ईमान वालियों, ये नहायत ताबनाक तारीखी दिन था। गली कूचे तकदीस तमहीद के कलमात से गूंज रहे थे और इंसार की बच्चियां खुशी और मसरत से उन अशार को नगमे बखेर रही थी। कैसे? अशरकल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जितु बिल अम्रिल मुताई। ये खूबसूरत कलमात उस वक्त उन बच्चियों ने अदा किए थे। ईमान वालियों, यहाँ तक हमारी हयात तैयबा की एक किस्म और इस्लामी दावत का एक दौर यानी कि मक्की दौर पूरा हो जाता है। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी और तंदुरुस्ती कल हम मदनी दौर के मराहिल की तरफ जाएंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें मक्की दौर में जो हमारे और प्यारे आका, हमारे और आप सब के प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो मसाइब परेशानियां हमारे लिए, दीन इस्लाम के लिए, तौहीद और रिसालत के लिए उन्होंने बर्दाश्त की, हमें भी इसके ऊपर फहमो फरासत करने की तौफीक अता फरमाए, इसके ऊपर तदब्बुर करने की तौफीक अता फरमाए और इस्लाम की सूरत में हमें अमली अपने इस्लाम से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम फी अमानिल्लाह।